بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ کا کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور اس کے برکتوں کے ساتھ اپنے گھروں میں موجود ہوں گے۔ آپ سب کو رمضان کا دوسرا عشرہ بہت مبارک ہو۔ کے دوسرے عشرے کی دعا آپ ضرور پڑھیں۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی دعا یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں اللہ سے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو میرا رب ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اس دعا کو ضرور پڑھیے اور ساتھ ساتھ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا اور ہمیں اس کو بہت شوق سے پڑھنا چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔ کوشش کریں خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ چلیے سب سے پہلے آپ کو آپ کا پچھلے ہفتے کا کچھ کام دکھاتی ہوں جو کہ آپ نے بہت محنت سے کیا تھا اور ہمیں سینڈ کیا تھا، اور آج دیکھیے میں آپ کو وہ کام دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیے بہت خوبصورتی سے یہ کام کیا گیا ہے، اس میں رنگ بھی بھرے گئے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر آپ نے سوالات کے جوابات دینے تھے اور بہت اچھا کام کیا ہوا ہے۔ یہ بونس کوسچن بھی بہت اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کیا گیا ہے۔ خوش خطی بھی آپ نے بہت اچھی کی ہے۔ شاباش پیارے بچوں، اسی طرح سے کام کرتے رہیں اور ہمیں بھیجتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کا تمام کام چیک کیا جائے گا اور آپ کو بھیجا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ تمام کام ہمیں بھیجا، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ گھر میں محنت کر رہے ہیں اور اپنا اسکول کا کام کر رہے ہیں۔ چلیے اب ہم نکات سوم کے سبق نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے سبق کا بہت گہرا تعلق آپ سب کی زندگیوں سے ہے۔ یقیناً اس کا نام سن کر اور اسے پڑھ کر آپ بہت خوشی محسوس کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ تصاویر دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، ان تصاویر کو دیکھ کے آپ کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا سبق کس کے بارے میں ہوگا۔ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے کہ آج کا سبق اسکول کے بارے میں ہی ہوگا۔ جی ہاں، لیکن کس کا اسکول؟ یقیناً کسی کا تو اسکول ہوگا، وہ بھی جیسا آپ کا اسکول ہے۔ آج ہم سبق پڑھیں گے آمنہ کا نیا اسکول۔ آمنہ کا نیا اسکول پڑھنے سے پہلے یقیناً آپ سب کو اپنا اسکول بھی بہت یاد آ رہا ہوگا، تو کیوں نہ ہم سب مل کر اپنے اسکول کی کچھ یادیں تازہ کریں، اپنے اسکول کی کچھ ایسی یادیں دیکھیں جو کہ ہم سب کے دماغوں میں محفوظ ہیں اور ہمارے دلوں میں بھی محفوظ ہیں۔ تو چلیے ہم سب مل کر ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سورج نکلا مشرق سے، ایک نیا سویرا لایا ہے۔ سورج نکلا مشرق سے، ایک نیا سویرا لایا ہے۔ پڑھنا لکھنا جس نے سیکھا اس نے نام کمایا ہے۔ بات بڑوں کی مان کے چلنا اللہ نے فرمایا ہے۔ پڑھنا لکھنا جس نے سیکھا اس نے نام کمایا ہے۔
हर एक बात देखो, बिना पढ़ाई क्या है जीना ये भी अब तुम सोचो। पढ़ने लिखने से बनती है हर एक बात देखो, बिना पढ़ाई क्या है जीना ये भी अब तुम सोचो। वक्त से मानो हार कभी ना आगे बढ़ना सीखो, हार के आगे जीत खड़ी है डर के कदम ना रोको। मेहनत हिम्मत से ही सबने अपना मुकाम बनाया है, मेहनत हिम्मत से ही सबने अपना मुकाम बनाया है। पढ़ना लिखना जिसने सीखा उसने नाम कमाया। जी प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको अपनी स्कूल की वीडियो देखकर? यकीनन आप बहुत खुश हुए होंगे। अब चलिए हम लोग सबक आमना का नया स्कूल पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में आपको क्या बताया जा रहा है और आपके लिए क्या सबक है इस कहानी से। चलिए हम सबसे पहले इसके तदरीसी मकासद देखते हैं। तदरीसी मकासद: सबक पढ़ने के बाद आप स्कूल की अहमियत से आगाह होंगे, सबक की तकलीदी पढ़ाई कर सकेंगे, सबक की रवानी के साथ पढ़ाई कर सकेंगे, नए अल्फाज से आगाह होंगे और फेल अमर और नहीं से वाकिफ होंगे। सबसे पहले सबक में मौजूद कुछ नए अल्फाज हम पढ़ते हैं और आप सब बच्चे मेरे साथ ये अल्फाज पढ़ें। काश्त, कमाई, हिम्मत, मुनासिब, खानी, खुदाई, ईंटों, मिस्त्री, आमीर, बढ़ी, दर्जी, वर्दियां, मसरूफ, इफ्तिताह, डॉक्टर, खेतों। ये तमाम लफ्ज इस सबक में इस्तेमाल हुए हैं जिनके मानी मैं आपको सबक की पढ़ाई के साथ साथ बताती रहूंगी। गौर से सबक पढ़िए और सुनिए। आमना के गांव फतेहपुर के ज्यादातर लोग किसान थे। वो दिन भर खेतों में मेहनत करते थे। फतेहपुर एक गांव का नाम है जहां के लोग ज्यादातर किसान थे। किसान वो शख्स होता है जो कि खेतों में बीज बोता है, मेहनत करता है, फसलें उगाता है। वो दिन भर वहां के लोग खेतों में मेहनत करते थे। खेत देखिए, खेत बड़ी सी जमीन जहां पर फसलें काश की जाती हैं, बीज बोए जाते हैं और किसान वो शख्स होता है जो बीज बोता है। वो गंदम और चावल काश्त करते थे। गंदम और चावल अनाज हैं। ये देखिए उनकी फसलें इस तरह की होती हैं, लेकिन जब वो हमारे घरों तक पहुंचते हैं तो वो इस हालत में होते हैं, यानी उनको साफ करके हमारे तक पहुंचाया जाता है। गंदम और चावल यकीनन आपने देखे होंगे। हम गंदम की रोटी खाते हैं और चावल भी हम सबको बहुत ही पसंद होते हैं। तमाम गांव वाले अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आमना के दादा शाहिद साहब को देते थे ताकि गांव में एक स्कूल बन सके। जी हाँ, देखिए आमना के गांव में कोई स्कूल नहीं था और वहां के लोग चाहते थे कि हमारे गांव में भी एक स्कूल बने। तो वो क्या करते थे, हालांकि वो किसान थे लेकिन जो भी वो कमाई करते थे उसका थोड़ा सा हिस्सा वो आमना के दादा जान यानी शाहिद साहब को दे देते थे ताकि ये पैसे जमा हो और वो स्कूल बना सकें। कमाई यानी वो पैसा जो आपको मेहनत करने के एवज मिलता है। चंद साल की कोशिश के बाद शाहिद साहब के पास मुनासिब रकम जमा हो गई। अब गांव वालों ने स्कूल बनाने की ठानी। कुछ अरसा गुजरा तो शाहिद साहब के पास मुनासिब रकम यानी कि इतनी रकम
जमा हो गई कि वो उससे स्कूल की तामीर कर सकते थे। फिर उन लोगों ने स्कूल बनाने की ठान ली। ठानी यानी पक्का इरादा कर लेना, ठान लेना। किसी भी काम का पक्का इरादा करने को ठानी कहते हैं या ठान लेना। एक दिन सब ने मिलकर जमीन की खुदाई का काम शुरू किया, यानी उन्हें जमीन को खोदना शुरू किया और बुनियादें बनाने लग गए कि हमने स्कूल तामीर करना है। आखिर दीवार बनाने का वक्त आया। अनवर चचा और उनके साथी मजदूरों ने बहुत हिम्मत की। वो ईंटें और रेत की बोरियां अपनी पीठों पर लाद कर स्कूल के मैदान तक लाए। यानी अनवर चाचा एक मिस्त्री थे जो कि अपने साथ मजदूरों को मिला के उन्हें बहुत हिम्मत से काम किया। बहुत हिम्मत यानी जोश, जज्बा, पूरी लगन के साथ काम करने को हिम्मत कहते हैं। और उन्होंने अपनी पीठों पर यानी कमर पर, देखिए इस आदमी ने भी कमर पर ईंटें बांधी हुई हैं और ये ईंटें लादकर अपनी जगह लेकर जा रहा है। रेत की बोरियां, ये बोरी कपड़े की बनी होती है, इसमें देखिए रेत है और ये लोग उठा के स्कूल के मैदान में लेके जा रहे हैं। गांव के मिस्त्री अहमद चचा ने अपने साथियों की मदद से दीवार की तामीर शुरू की। गांव के मिस्त्री कौन होता है? यकीनन आप सोच रहे होंगे ये मिस्त्री क्या है। जी, मिस्त्री वो होता है जो कि दीवारें बनाता है, घर बनाता है, ईंटें जोड़ता है। ये देखिए, ये सामने मिस्त्री आपको नजर आ रहा है जो कि दीवार बना रहा है। उसने अपने साथियों यानी दोस्तों, बाकी मजदूरों के साथ मिलकर दीवार की तामीर शुरू की, उसको बनाना शुरू किया। ये देखें, इस तस्वीर में आपको मिस्त्री भी नजर आ रहे हैं जो कि स्कूल की तामीर कर रहे हैं और मजदूर भी मौजूद हैं। अरशद चचा गांव के बढ़ई थे। वो और उनके शागिर्द रोजाना स्कूल के मैदान में बैठकर बच्चों के लिए लकड़ी की कुर्सियां और मेजें बनाते थे। अरशद चचा जो हैं वो बढ़ई थे। अब आप सोच रहे होंगे बढ़ई किसे कहते हैं, तो देखिए इस तस्वीर में ये आदमी लकड़ी से का काम कर रहा है, उससे मेजें और कुर्सियां बना रहा है। वो शख्स जो लकड़ी का काम करता है, हमारे घर में मुख्तलिफ सोफे, बेड लकड़ी के मौजूद होते हैं, ये सब कौन बनाता है? ये बढ़ई बनाता है। और वो अकेला तो नहीं बना सकता, तो वो अपने शागिर्दों के साथ मिलकर, यानी जिनको उसने सिखाया होता है, उनके साथ मिलके वो ये काम करता है। शागिर्द, जैसे आप स्कूल जाते हैं और वहां पे आपको उस्ताद पढ़ाते हैं, उस्तानी पढ़ाती हैं, तो आप शागिर्द होते हैं और आपको सिखाने वाला या सिखाने वाली उस्ताद या उस्तानी होती है। इसी तरह बढ़ई या कोई भी पेशा जहां पर वो कोई दूसरे को सिखाता है तो वो उसके शागिर्द हो जाते हैं। इसमें दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, कुर्सियां और मेजें। ये जमा है, इनकी वाहिद है कुर्सी और मेज, जो कि हम आम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कुर्सी, मेज, इसी की जमा है कुर्सियां और मेजें। एक दिन गांव के दर्जी अफजल चचा ने अपनी दुकान से छुट्टी की। गांव में एक दर्जी भी मौजूद था। दर्जी कौन होता है? दर्जी वो होता है जो कपड़े सीता है। एक दिन उसने अपनी दुकान बंद कर दी, यानी वो अपनी दुकान पर नहीं गया, उसने छुट्टी कर ली और उन्होंने गांव के तमाम बच्चों का नाप लिया। फिर वो बच्चों की वर्दियां सीने में मसरूफ हो गए। ये देखें, दर्जी के हाथ में एंची टेप है जिससे वो नाप ले रहा है, यानी वो ये नाप रहा है कि इस बच्चे को यूनिफॉर्म का कौन सा साइज, कितना साइज पूरा होगा।
تو اسے ناپنا کہتے ہیں کیونکہ اس نے اس کی وردی بنانی ہے. وردی جو ہے وہ یونیفارم کو کہتے ہیں. جیسے آپ اسکول میں یونیفارم پہنتے ہیں، پولیس اور ہمارے فوجی جوان بھی وردیاں پہنتے ہیں، یعنی وہ لباس جو مخصوص ہو اور اس ادارے یا پیشے کی پہچان ہو وردی کہلاتا ہے. گاؤں والوں نے اسکول میں پڑھانے کی ذمہ داری آمنہ کی خالہ کو دی. وہ شہر سے پڑھ کر آئی تھی، یوں استانی کا بھی انتظام ہو گیا. آمنہ کی خالہ کیونکہ وہ شہر سے پڑھ کر آئی تھی، یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی تھی، تو وہ بہت اچھا پڑھانا جانتی تھی. اس لیے گاؤں والوں کی ایک مشکل تو بہت جلد آسان ہو گئی کہ انہیں ایک استانی مل گئی اور انہوں نے آمنہ کی خالہ کو یہ ذمہ داری سونپ دی کہ آپ بچوں کو پڑھائیں گی. اس طرح مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے مل کر اسکول بنایا. یعنی سب نے مل کر جو مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے تھے، پیشے یعنی وہ شعبہ جس میں ہم مہارت حاصل کرتے ہیں یا ہمارے پاس اس چیز کی ڈگری ہوتی ہے، جیسے کہ استانی، ڈاکٹر، انجینئر، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کی ڈگری تو نہیں لیتے لیکن مہارت حاصل کرتے ہیں. جیسے کہ اس تصویر میں، اس سبق میں آپ کو بتایا گیا بڑھئی یا مستری، مزدور، درزی، کسان، یہ سب لوگ مہارت حاصل کرتے ہیں اپنی اپنی چیزوں میں. یعنی یہ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اور یہی ان کا پیشہ ہوتا ہے، یہی ہمیشہ سے یہ کام کرتے ہیں. آخر وہ دن بھی آ گیا جب فتح پور میں اسکول کا افتتاح تھا. افتتاح یعنی ایک تقریب ہوتی ہے جس میں تمام لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور فیتا کاٹا جاتا ہے. جو بھی نئی، جیسے آمنہ کا نیا اسکول بنا تو اس کے بننے جس دن اس نے کھلنا ہوتا ہے، افتتاح ہونا ہوتا ہے، اس دن ایک تقریب رکھی جاتی ہے جس میں فیتا کاٹا جاتا ہے. سب بچے اور گاؤں والے بہت خوش تھے. یہ دیکھیے ان تصاویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بچے کتنے خوش ہیں اور گاؤں کے لوگ بھی بہت خوش ہیں. یہ کیوں خوش ہیں؟ یہ اس لیے خوش ہیں کہ ان کے گاؤں میں ایک اسکول بن گیا ہے. اب یہ سب لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیجیں گے اور ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں گے. آمنہ اپنی نئی کتابیں لیے اسکول کے باہر کھڑی تھی. آمنہ نے دیکھیے کتابیں پکڑی ہوئی ہیں اور وہ اسکول کے باہر کھڑی تھی. شاہد صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے کیا بنے گی. آپ کو پتا ہے نا شاہد صاحب کون ہے؟ شاہد صاحب آمنہ کے دادا جان ہیں. ان نے آمنہ سے پوچھا کہ تم تعلیم حاصل کر کے کیا بنو گی؟ آمنہ نے خوشی سے جواب دیا. آمنہ خوشی سے بولی، دادا جان، میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں گی تاکہ بیمار لوگوں کا علاج کر سکوں. ڈاکٹر بیمار لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ میں پڑھ لکھ کر ایک ڈاکٹر بنوں گی تاکہ میں لوگوں کا علاج کر سکوں. جی پیارے بچوں، آپ نے کہانی پڑھی اور یقیناً آپ نے اس سے اخلاقی سبق تو سیکھا ہوگا. تو سوچئے آپ کو اس کہانی سے کون سا اخلاقی سبق ملتا ہے؟ جی ہاں، ہمیں اس سبق سے ایک اخلاقی سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی مدد آپ کے اصول کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانا چاہیے، مل کر کام کرنا چاہیے. ویسے بھی اتفاق میں برکت ہوتی ہے اور جو بھی کام مل کر کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہوتا ہے اور اس میں برکت ہو جاتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں اور اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھیں. اب ہم سبق کے آخر میں اردو گرامر میں ہم فعل امر اور فعل نہیں کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور آپ جانیں گے کہ امر کیا ہوتا ہے اور نہیں کیا ہوتا ہے.
अमर। फेल अमर जब किसी बात में या जुमले में कोई काम करने के लिए कहा जाए तो इसे फेल अमर कहते हैं। यानी अगर आपको आपकी अम्मी या उस्तानी या कोई भी किसी भी काम के करने का कहे कि तुम ये काम करो, तो ये होगा फेल अमर। ठीक है, मसलन सफाई करो, खाना खाओ, नज्म लिखो वगैरह वगैरह। ये तमाम जुमले फेल अमर के हैं। इनकी मिसालें हम देखते हैं। करो, ये देखिए हुक्म दिया जा रहा है या कहा जा रहा है कि सफाई करो। करो इसमें क्या है? अमर है, फेल अमर। खाओ, खाना खाओ में खाओ जो है वो फेल अमर है। लिखो, नज्म लिखो में लिखो फेल अमर है, यानी किसी काम के करने का कहा जा रहा है। देखते हैं कि फेल नहीं क्या होता है। जब किसी बात में या जुमले में कोई काम करने से रोका जाए तो इसे फेल नहीं कहते हैं। यानी अगर आपको ये कहा जाए कि ये काम मत करो, ये काम ठीक नहीं है, ये काम नहीं करो, यानी आपको किसी भी काम के ना करने का कहा जाए तो वो फेल नहीं होता है। मसलन सफाई मत करो, खाना ना खाओ, नज्म ना लिखो वगैरह वगैरह। ये सफाई मत करो, ये साइन आपको क्रॉस का नजर आ रहा है, यानी ये काम नहीं करना, यहां से सफाई नहीं करनी, सफाई मत करो। ना खाओ, यानी यहाँ पे खाना फेंकना, खाना खाना मना है, खाना ना खाओ। नज्म ना लिखो, यानी राइटिंग नहीं करो, लिखो नहीं। ना जो है वो फेल नहीं है। यकीनन आपको फेल अमर और फेल नहीं के बारे में समझ आ गया होगा। चलिए अब हम मश्की सवालात की तरफ चलते हैं। इसके तदरीसी मकासद कुछ इस तरह से हैं। तलबा नए अल्फाज की खुशखती कर सकेंगे, अरकान को लफ्ज से मिला सकेंगे, सवालात के जवाबात दे सकेंगे, दुरुस्त जवाब की निशानदही कर सकेंगे और जुमलों में फेल अमर और नहीं तलाश कर सकेंगे। ये देखिए आपके लिए वर्कशीट तैयार की गई है जिसमें खुशखती के लिए कुछ अल्फाज दिए गए हैं। काश्त, ताल्लुक, तामीर, बढ़ई, डॉक्टर। इनको खुशखती के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए खुशखती कीजिए। नंबर 2, अरकान को उनके दुरुस्त लफ्ज से लकीर के जरिए मिलाए। अरकान है और यहाँ अल्फाज दिए गए हैं कि सान, पे, शे, दर, जी, हिम, मत। अब आप देखिए कि कौन सा लफ्ज बनता है और उसे लकीर के जरिए मिलाएं। सवाल नंबर 3, मदरजा झेल सवालात के दुरुस्त जवाबात पर दायरा लगाएं। यहाँ आपने दायरा लगाना है। पहला सवाल है, आमना के गांव का क्या नाम था? आमना के गांव का नाम लाइलपुर था, रसालपुर था या फतेहपुर था? जो भी दुरुस्त जवाब है उस पे दायरा लगा दें। सवाल नंबर 2, अरशद चचा का पेशा क्या था? इसमें से देखें क्या वो मिस्त्री थे, बढ़ई थे या वो दर्जी थे? एक ऑप्शन पर दायरा लगाएं। सवाल नंबर 3, गांव के ज्यादातर लोग क्या थे? किसान थे, मजदूर थे या कुम्हार थे? दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। सवाल नंबर 4, जुमले को पढ़ें और उसको उसकी दुरुस्त तस्वीर से मिलाएं। पहला जुमला है, लकड़ी से सामान बनाता है। कौन बनाता है? तस्वीर देखें और मिलाएं। दूसरा, कपड़े सीता है। कौन कपड़े सीता है? बीमारों का इलाज करता है। देखिए इसमें से कौन है जो बीमारों का इलाज करता है? लकीर के जरिए मिलाएं। अब हम फेल अमर और फेल नहीं की वर्कशीट करेंगे, जिसका पहला सवाल है, मदरजा झेल अमर जुमलों को अमर और नहीं जुमलों को नहीं के साथ मिलाएं।
स्कूल का काम करो, ये कौन सा जुमला है? फेल अमर है या फेल नहीं है? आपने इसको लकीर के जरिए ही मिलाना है। गंदगी मत फैलाओ, छोटों से प्यार करो। सवाल नंबर 2, मदरजा झेल जुमलों में अमर के लफ्ज और नहीं के लफ्ज पर दायरा लगाएं। अब आपने मुझे इसमें बताना है कि गेंद से खेलो, गेंद से खेलो में अमर क्या है? कौन सा फेल अमर है? कौन सा लफ्ज फेल अमर है इसमें? गेंद से खेलो, फल काटो, कुरान की तिलावत करो, नहीं, शोर मत करो, झूठ ना बोलो, कीचड़ में मत खेलो। इसमें बताएं कि नहीं का कौन सा जुमला है, नहीं का लफ्ज कौन सा है बीच में। सवाल नंबर 3, मदरजा झेल अमर जुमलों में टिक और नहीं जुमलों पर क्रॉस का निशान लगाएं, यानी सही और गलत का निशान हमने लगाना है। पहला है बड़ों की इज्जत करो। अगर ये अमर जुमला है तो इस पर टिक का निशान लगाएं, दुरुस्त का निशान लगाएं, और अगर ये नहीं का जुमला है तो इस पे गलत का निशान लगाएं। दूसरा, स्कूल जाओ, इसमें ये कौन सा जुमला है, अमर का या नहीं का? रोजा रखो, घर से बाहर मत जाओ। प्यारे बच्चों, अगर आपको वर्कशीट हल करने में कोई भी मुश्किल पेश आ रही है तो आपके लिए हलशुदा वर्कशीट्स मौजूद हैं, आप इनसे मदद हासिल कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अरकान को भी मिला के दिखाया गया है और आपके लिए सवालात के जवाबात को भी हाईलाइट कर दिया गया है ताकि आपको पता चल जाए कि दुरुस्त जवाब कौन सा है। ये अमर और नहीं की वर्कशीट है, ये भी आपके लिए हल कर दी गई है। कोशिश करें कि खुद काम करें और अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप इन वर्कशीट से मदद ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी। यकीनन आपको ये सबक समझ आ गया होगा। जरूर इसकी पढ़ाई करें, ज्यादातर वक्त पढ़ाई को दें, लिखाई करें, वर्कशीट्स को हल करें और तमाम मुतल्लिका टीचर्स को सेंड करें ताकि आपकी वर्कशीट्स चेक की जाएं और आपको नंबर दिए जाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।